ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਚਾਹੇ ਏ ਕਹੇਗਾ, ਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਏ, ਕੈਪੀਟਲ ਬੀ, ਐਮ, ਐਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ, ਫਾਈਂਡ ਕੇ ਸੋ ਡੈਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 36 ਹੈ। ਇਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6, ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਨੇ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੇ। ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਸਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਏ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ ਐਕਸ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕੱਢੋ ਸੋ ਦੈਟ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੈਟ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 99 ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿਤਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੇ ਨਾਲ, ਏ ਨਾਲ, ਬੀ ਨਾਲ, ਸੀ ਨਾਲ, ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਮ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਵ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਸਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਐਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਐਫ ਏ ਕੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕਹਿਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕੱਢੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੱਢੋ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ 60 ਜਾਂ ਏ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ।
जिद्दां इहदे विच किते मोड ते है नहीं, मैं तुहानूं कहा ना बोलन च थोड़ा जिहा फर्क आए ना, करने उदां ही है, सिर्फ थोड़ा जिहा चेंज करना। अगे आपां इक्वल प्रूव करते ही, अगे प्रूव करते ही इक्वल वैल्यू कढ के, हुण आपां स्टार्टिंग ते मान लेना भी ये दोनों या ये तीनों की गए है इक्वल। जिद्दां साइड ते रैंडो लिखे दा सानू कहता फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है 6 इज गिवन। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ लगेगा, लिमिट वाला लगेगा कि नेबरहुड वाला, क्योंकि इतने मोड है नहीं, ना ही मोड है, ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ना ही फंक्शन स्प्लिट होएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ लगेगा, पहली वाला। फिर तो सुनो लास्ट च ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ कहता फंक्शन की है कॉन्टीन्यूअस। अगर कॉन्टीन्यूअस है तो ਇਹਦਾ मतलब लिमिट x टेंड्स टू 6 fx ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ है f6। ਇਹਦਾ मतलब लिमिट x टेंड्स टू 6 fx ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ है f6। अप्रूव नहीं करना, आप पहले ही मान लिया दोनों की गया है इक्वल। वो च प्रूफ करते ही ये आप पहले ही मान लेना दोनों की गया है इक्वल। ए की जगह की आ गया 6, बस आ गया। वो च आप प्रूफ करते ही, क्योंकि वो क्या होंगे प्रूव करो या शो करो। ये सानू ऑलरेडी गिवन है कॉन्टीन्यूअस है, ਇਹਦਾ मतलब कॉन्टीन्यूअस है 6 से, ਇਹਦਾ मतलब लिमिट से डायरैक्ट वैल्यू दोनों की होणगियां इक्वल। हुण ਇਹਦੀ वैल्यू कढो, फंक्शन की वैल्यू 6 से कितनी है, फंक्शन या इनू वखरा वखरा सॉल्व कर लियो। सानू पता फंक्शन की वैल्यू 6 से कितनी है k, ते ਇਹਦੀ निकाल लो। ਇਹਦੀ गिवन होगी k, जो आप अननोन निकालना, तो ਇਹਦੀ वैल्यू निकाल लो। दोनों नू अलग अलग निकाल के ऐ तो निकल ही गया, दोनों की वैल्यू अलग अलग करके इनू 1 च पुट कर दो, अपने आप ही तुहाडे कोल k आएगा। टाइम मैं स्टार्टिंग च बोलिया ना, चाहे कॉन्टीन्यूअस गिवन है तो कॉन्स्टेंट निकालना है, चाहे कॉन्टीन्यूअस प्रूव करना जिदा ए एक्सरसाइज है, सिर्फ स्टार्टिंग लिखन च थोड़ा जिहा फर्क आना है, करना उदा ही करना। इनू भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ दोनों इक्वल प्रूफ करते ही, ਜਦੋਂ जो कहते कॉन्टीन्यूअस शो करो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कॉन्टीन्यूअस है तो आप पहले ही मान लेना दोनों की है इक्वल। ਇਹਦੀ वैल्यू वक्री कढ़ लो, ਇਹਦੀ वैल्यू वक्री। वैल्यू कितना करनी है जिदा ए एक्सरसाइज की है, दोनों वैल्यू कढ़ के इस पुट कर देनी है तो अपने आप ही आना कॉन्स्टेंट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इक्वल नहीं आने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इक्वल ਸਾਡੇ को मान के, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है ना, मान के इक्वल तो आप कॉन्स्टेंट निकालना। जिदा नंबर 1 आ गया, वैल्यू कढो हुण, सॉरी ऐसे लिखो लिमिट x टेंड्स टू 6 fx, निकालो 6 की वैल्यू। फंक्शन 6 से अप्रोचेस टू 6, फिर वही x स्क्वायर इतने 36 टू 6 का स्क्वायर लिखना, जिले वैल्यू पुट करोगे की बन गई 0/0 है ना। एरी वैल्यू कितनी आ गई, फिर ऊपर फार्मूला ला दो x - 6 x + 6 x - 6, ए कटे गए है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ वैल्यू कढ़नी ਆਪਾਂ x अप्रोचेस टू 6 fx। ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 6 x + 6, करो 6 पुट, 6 + 6 कितना आ गया 12। तो f6 की कितनी है वो तो पता ही है कि है, जब लिखना है तो लिख लो आल्सो f6 कितना है k, पुट ऑल इन 1। ऑल मतलब आ लिमिट वैल्यू भी तो ए भी के च पुट कर दो 1 च, है ना। मैं ऊपर सॉरी स्टेटमेंट लव करदा, आप ए निकालना ना, कॉन्टीन्यूअस सानू गिवन सी 1 च पुट करो, ਇਹਦਾ मतलब कितना आ गया, ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आ गई 12 ਤੇ k। ਇਹ कभी इक्वल नहीं आना, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कांस्टेंट है, k ਦੀ वैल्यू ਤੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ना, याद रखना। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਹੀ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ इक्वल, या दोनों या तीनों। नेबरहुड वाला जेडे समझ नेबरहुड वाला लगेगा वो तीनों इक्वल, जेडे एफ तो इतों स्टार्टिंग ही मान लेना भी दोनों इक्वल है। पिछले समझ प्रूफ करते ही ये गिवन है कॉन्टीन्यूअस, यदा मतलब स्टार्टिंग के ही सानू पता लग गया कि ये दोनों इक्वल है। यदि वैल्यू निकाल लो, यदि सीधी विचों ही पता लग गई, मैं रब करता, यदि विचों ही पता लग गई 6 है, अज नहीं तो कर
दोनों वैल्यू कट के पुट करके 1 च इतों थले आने तो यह साढ़े को की आ गया आंसर कि के कितना आ गया 12। यह भी डायरैक्ट भी निकाल सकते हो, मैं तुहानूं दसांगा लास्ट सम च भी डायरैक्ट कितना निकालना। एक नंबर का सम मोस्टली यही सम पाता एक नंबर च कॉन्स्टेंट निकालो के MCQ आंदा एक नंबर का और ज़्यादातर यही पाता कॉन्स्टेंट निकालो। पहला सम ही तुहाडा आपां देखने अगे कि आएगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं तुहानूं शॉर्टकट भी दसांगा। देखो ये बीज है, सेकंड सम देखो एक्सरसाइज 5B है ना। फिर उन्हें कहता फाइंड, मैं पूरा नहीं लिखने सीधा शॉर्टकट लिखने, फाइंड के सो डैट फंक्शन केड़ा फंक्शन तो तीन क्या ना देखो सम भी वही आई है x इज नॉट इक्वल टू 1 k if x is equal to 1 and not equal to 1 है, देख लेना बुक च। is continuous at x is equal to 1 मतलब फिर वही सम आ गए, कहता k की वैल्यू कटो आ गया k तुहाडे को फंक्शन f(x) है की है कॉन्टीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है 1 देते हैं, कॉन्टीन्यूअस प्रूव नहीं करना गया था ना। k निकालो सो डैट द फंक्शन ऐसा सारा फंक्शन है x इज नॉट इक्वल टू 1 के k की वैल्यू जो x कितना है 1 तो यह फंक्शन की है कॉन्टीन्यूअस के 1 ए की जगह कितना आ गया 1। फिर उदा ही लाइन लिख लियो एज f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अगर कॉन्टीन्यूअस है तो यदा मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) के इक्वल होएगा f(1) लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) के इक्वल हो जाएगा f यही होंगे ना कॉन्टीन्यूअस के डेफिनेशन। हुण इहदे विच देखो नेबरहुड वाला लगना कि लिमिट वाला। नेबरहुड मतलब a प्लस a माइनस या a है ना, तीन कर देगी a की जगह कितना आ गया 1। अच्छा एक नेबरहुड वाला तो लगना नहीं, नेबरहुड वाला मैं तुहानूं कही तीन जगह ते नेबरहुड वाला लगता है। एक जो मोड आ जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फंक्शन 3 पार्ट स्प्लिट होया है ना, स्प्लिट होया है तिना भी कोई नहीं है, यदा मतलब एक फिर लिमिट वाला लग गया। यदा मतलब यह दोनों की है इक्वल, यह सानू गिवन है, गिवन है। गिवन कितों पता लगे गिवन है क्योंकि कॉन्टीन्यूअस गिवन है। अगर कॉन्टीन्यूअस है तो फिर दोनों इक्वल होणगे ही होणगे। यह दोनों इक्वेट करके इत्थों आपां की निकाल लेना है कॉन्स्टेंट। यदा मतलब f(1) की वैल्यू फिर वही फंक्शन की वैल्यू 1 ते कितनी है k, फंक्शन की वैल्यू 1 ते कितनी है k। यदा मतलब यह तो आ गया, आपां सिर्फ यही निकाल लें, इनू वखरा निकाल लियो। लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) यदी वैल्यू निकाल लगा मैं x अप्रोचेस टू 1 वास्ते केड़ा फंक्शन लिखिए है वाला तुसीं इत्थे 1 पुट करियो ऊपर भी थल्ले भी 0/0। कई बार कहता 0/0 नहीं बनता, अगर 0/0 नहीं बनता फिर तो उत्थे खत्म हो जाना ही करके पुट करना 1 का स्क्वायर 1 3 2 ऊपर भी 0 बन जाना तो थल्ले भी 0। यदा मतलब फर्दर सॉल्व नहीं होना। आई की करने कई बार कहता है 0/0 खत्म हो जाती है, जिदा आप +1 की 0/0 करो खत्म। ये फैक्टर बनाओ तुहानू +1 क्या ही पोलीनोमीअल, जो भी ऊपर भी पोलीनोमीअल आए थले भी पोलीनोमीअल आए 0/0 फॉर्म बने तो की बन जाते हैं फैक्टर। पोलीनोमीअल मतलब जिदा क्वाड्रेटिक आ गई, क्यूबिक आ गई, 4 पावर वाली इक्वेशन जी होंगी उन्होंने आप बोल दें इन जनरल पोलीनोमीअल। अगर पोलीनोमीअल जो 0/0 बन जाए +1 किया ही आप जिन्होंने +1 पढ़ी है उन्होंने बहुत ईजी लगने भी 0/0 अगर पोलीनोमीअल बने तो आप फैक्टर बना के 0/0 खत्म हो जाती है। इसे करके पिछले सम भी फैक्टर बनाई ही भी फैक्टर। साइन को टिग्नोमेट्री 0/0 बने तो फिर आप करते होंगे ही साइन ax/ax से tan ax/ax से कन्वर्ट करते ही जिदा आप पिछली वीडियो से सामू भी किया भी आनी है। देखते हैं फिर दोबारा फैक्टर बनाओ इन्हें, जो तुम ये फैक्टर बनाओगे अपने आप ही 0/0 फॉर्म खत्म हो जानी है, जोड़ा साढ़े को वैल्यू आएगी वो आंसर आएगा।
एक्स माइनस टू, चलो मैं लिख देना, इतों एक्स कॉमन कढ़िया, एक्स माइनस टू, इतों माइनस कॉमन निकल गया। फैक्टर बनाने तुहानूं आंदे ही होने, 9 तो बना दिया आप कटेंगे। करो वैल्यू पुट हूँ, एक 1 पुट करो, यदा मतलब एक्स की वैल्यू चलो एक स्टैप हो लिख देना 1 एक्स माइनस टू, जे 1 पुट करोगे 0 बाई 0 खत्म होगी ना, यही 0 बाई 0 बना ली आप कटते जिदा +1 से कटे, ये वैल्यू कितनी आ गई, कि वैल्यू आई है इधर की गई, वो इधर की गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ करना उदा ही है जिदा आप ए एक्सरसाइज की है, सिर्फ अगे आप दोनों इक्वल प्रूफ करते ही लास्ट वैल्यू कट के इस आप पहले लिख देना भी दोनों की है इक्वल, है आ गया। फिर इस तो बाद आल्सो F1 फंक्शन की वैल्यू 1 तो कितनी है के, दो आप निकालना है ना। फिर उस तो बाद अगे वही लाइन लिखो पुट ऑल इन 1, है ना। पुट ऑल इन 1, 1 च पुट करो, एदी वैल्यू कितनी -1, एदी वैल्यू के आ गया आंसर, के दी वैल्यू कितनी आ गई -1, वो ठीक है जी है। देखियो हम पॉलीनोमियल वाले मैं एक थर्ड सम करवाना, सारे इदा दे आने, कॉन्स्टेंट निकालो, कॉन्स्टेंट निकालो, थर्ड सम देखो, फिर वही है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स व्हाट वैल्यू ऑफ ए, मैं शॉर्टकट लिखना का एफ एक्स साइन 5x अपॉन 3x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, के इफ x इज इक्वल टू 0 आ गया, इसको गे इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, मतलब फिर वही चीज़ है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 ते, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 ते, आपा की निकालना है के, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 ते, आपा की निकालना है के, करो सॉल्व मैनू। फिर वही देख लो एज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एदा मतलब हूँ एक देखो नेबरहुड वाला कंसैप्ट लगेगा कि सीधा लिखो कि कॉन्टिन्यूअस से तो दो ही फार्मूले होंगे ही, या नेबरहुड वाला या लिमिट इक्वल कर दो है ना, पर इतने नेबरहुड नहीं लगनी, कड़ी लगनी लिमिट, फिर इतने भी लिमिट वाला लिखना, जिन्हें नेबरहुड वाला आएगा वो भी करावांगे साथ। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0, दोनों की है इक्वल, क्यों, क्योंकि यह लगी कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यह मतलब यह भी दोनों की होंगे इक्वल। हूँ इस तो बाद यदि वैल्यू निकालो x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, है ना, निकालो लिमिट एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई साइन, अच्छा करो 0 पुट, साइन 0 0 ते 3 इंटू 0 0 बन गई 0 बाई 0। जेडे पिछले सम किए ही वो की गई पोलीनोमीअल वाले केस 0 बाई 0 बनती ही, जो पिछले दो सम किए हैं पोलीनोमीअल वाले केस 0 बाई 0 फॉर्म बने, तो मैं तुहानूं की कही फैक्टर बन के कट्टे जाते हैं, जिद्दां आपां पिछले दोवां समां ते कीता है ना, तो तुहानूं बोलिया भी आई देखो +1 जिन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल पढ़ी है उन्होंने सारा कुछ ईजी लग रहा है, +2 जिन्होंने +1 नहीं पढ़ी उन्होंने वास्ते बार बार चीज़ां बोलने। पिछले सम आप इक्वेशन वाले किए ही, पोलीनोमीअल मतलब इक्वेशन वाले जिदा क्वाड्रेटिक आ जाए क्यूबिक आ जाए, वो 0 बाई 0 फॉर्म 0 बाई 0 की होंगे नहीं पता, अगे सॉल्व करना पैंदा है। सॉल्व किद्दां करिए, जेडे इक्वेशनां वाले सम है वो फैक्टर बना के 0 बाई 0 फॉर्म खत्म हो जाती है। ट्रिग्नोमैट्री दे 0 बाई 0 फॉर्म किद्दां खत्म होती है, मैं तुहानूं कहा ही पिछली वीडियो से भी सम पाया ही मैं, 0 बाई 0 इदा खत्म होती है, फार्मूला होंदा +1 च पढ़िया ही, जिन्होंने नहीं पढ़िया वो हूँ याद रख लो साइन AX बाई AX,
जिन्ना एंगल च उन्ना ही थल्ले होए। देखो 0 पुट करो साइन 0 0 यह भी 0 साइन 0 0 यह भी 0 है ना। तो यदी वैल्यू कितनी होंगी है 1 जिन्ना एंगल च उन्ना ही थल्ले। हुण इहदे विच 0/0 फॉर्म बन गई। इहदे विच ये फार्मूला बनाओ। हुण तुसीं कहोगे इहदे विच ते एंगल च 5x है थल्ले की है 3x आपां प्लस वाले बड़े सम कीते इहदे नाल दे। ते इहनूं की करो फिर इहदा मतलब बनाओ 5x ए मैं 3 अलग लिखता कोई फर्क तो नहीं ना पिया। ए 3 मैं अलग लिखता तो थल्ले की जाएगा x कोई फर्क तो नहीं पिया हो जाए गया ना x। क्यों इतना नहीं किया सानू की चाहिए 5 क्योंकि ये फार्मूला लगना ट्रिग्नोमेट्री च जो भी 0/0 बनेगा या ए लगना फार्मूला साइन वाला या टैन वाला कोस वाला नहीं होंदा कोई या साइन वाला ते या फिर टैन वाला। एक साइन वाला लग गया पर ये सानू की चाहिए 5x अं की किया 5 नाल मल्टीप्लाई करता तो 5 नाल डिवाइड 5 नाल 5 कट्टे गए कोई फर्क तो नहीं पिया। पर इनू इदा लिखने नाल की बन गया जो आप लिमिट पुट करांगे लिमिट पुट करांगे यह की बन गया साडे को 1 लिमिट पुट करने तो बाद होता फिर लिमिट नहीं लिखनी नाल ऐ ना करो इत्थे 1 लिख दिओ ते इत्थे लिमिट की नहीं लिमिट पुट होने ही 1 बनता बन गया ना जिन्ना एंगल च उन्ना ही है। तो यदा मतलब आंसर कितना आ गया 5/3। एक जी वैल्यू कड्डी है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। देखो कितना छोटा है सम कितना छोटा है सम 1 नंबर पर आता है। मैं शॉर्टकट दसांगा ना नैक्सट वीडियो दसांगा पहले इसकी प्रैक्टिस करिए। f ऑफ 0 दे दिता f ऑफ 0 फंक्शन की वैल्यू 0 ते कितनी है k है ना। लिख लो एक अगली लाइन लिखनी है तो आल्सो f ऑफ 0 कितना है p है ना। इसको पुट ऑल इन 1 ए भी पुट कर दो 1 च ए भी पुट कर दो 1 लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 ए दी वैल्यू k है कि आ गया साडे कोल ए दी वैल्यू कढनी k कितना आ गया 5/3। ये हम 6 सम देखना बाकी सारे इहदे वर्गे ही है साइन वाले बना देने ना साइन के टैन वाला है ना बन जाने। अगर कोई प्रॉब्लम होती है मैसेज कर दिया करो आंदे विचों बच्चे ने बहुत घट आते हैं। अगर कोई सम नहीं निकलता ग्रुप च नहीं पाना मैनू परसनली मैसेज कर देना कि सर यह प्रॉब्लम है या फोन करके पूछ लियो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन जो भी करना तुम 12 बजे तो लैके 2 बजे के बीच डेली किसी भी टाइम संडे को छड्ड के फोन करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते। सम नंबर 6 ये पूरी स्टेटमेंट की गई है। यह सम तुहानू पिछली एक्सरसाइज वर्गा आ गया डिस्कस दी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पूरा सम है ऊपर स्टेटमेंट है बड़े पार्ट है मैं एक ही करा लगा। डिस्कस दी कंटिन्यूटी मतलब एट x इज इक्वल टू 0 ये कोई कांस्टेंट नहीं है कोई कांस्टेंट नहीं है मतलब यह सम कितों आ गया पिछले वाली एक्सरसाइज तो आ गया है ना। मैं तो सैकेंड पार्ट करवाना क्योंकि सैकेंड पार्ट थोड़ा चेंज होना 2x वाला ए सिंपल बन जाना ही एक x वाला है एक 2x वाला एक 3x वाला है ना। 3 पार्ट है मेरी बुक एक 4 जो नवी बुक होगी शायद 4x भी है। ये कॉन्स्टेंट नहीं कटना ए सेम सम कि आ गया ए सेम सम ए एक्सरसाइज वाला आ गया फिर बी एक्सरसाइज फिर पिछले सम आ गए क्योंकि ये सम है ही 2 तरह के। ये कहना फिर चेक करो कहता चेक करो कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं गा 0 ते चेक करो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं गा 0 ते है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ फिर चेक करांगे ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ लगाइए लिमिट वाला नेबरहुड वाला लाइए कि डायरेक्ट लाइए डायरेक्ट लगाइए नेबरहुड क्योंकि 3 केस है नहीं। फिर होता है जिदा पिछले वीडियो में किया ए एक्सरसाइज ए कॉन्टीन्यूस ਤਾਂ ही होएगा ये इक्वल गिवन नहीं गए ये ना कोई कॉन्स्टेंट है ना ही नहीं क्या ये तो नहीं कहते डिस्कस कहते चेक करो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं गा मतलब फिर ए एक्सरसाइज आ गई
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਖਰੀ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਖਰੀ 0 ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो कॉन्टिन्यूस है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ए एक्सरसाइज वाला आ गया बी च आपां की बड़े कॉन्स्टेंट वाले वक्रे सम है, उस सानू कॉन्टिन्यूस गिवन हुंदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्स्टेंट नहीं गिवन है कि सानू सीधा ही कहता कंटिन्यूटी चेक करो। कड्डो ਇਹਦੀ वैल्यू, अच्छा 0 की वैल्यू कितनी है 1, ਇਹਦਾ मतलब अगर ਇਹਦੀ वैल्यू भी 1 आ जाए तो आप कह देंगे कॉन्टिन्यूस है, अगर नहीं आए 1 को कुछ होर आ जाएगी तो आप कह देंगे डिसकॉन्टिन्यूस है, अगर यदि वैल्यू 1 आ जाएगी तो कह देंगे कॉन्टिन्यूस है। यदा मतलब यदि वैल्यू कड्डो ऐ तो तुहानूं गिवन नहीं, फिर इत्थे पहला नहीं लिख लेना जिद्दां वो पिछे कीते हैं, क्योंकि उत्थे कॉन्टिन्यूस गिवन नहीं। ये उधर जिद्दां ए एक्सरसाइज कीता ही पहला लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, कड्डो यदि वैल्यू केड़ा फंक्शन है अंडर 1 + 2x - 1 - 2x अपॉन sin x, इकट्ठा ही है, ठीक है। मैं रब कर लगा तो एदी वैल्यू वक्री कटो, एदी तो वैसे देती 1 है, अगर ए भी 1 आ जाएगी तो कॉन्टिन्यूस, अगर नहीं आई तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये एक्सरसाइज ओ मतलब पिछले वाले सम आ गए, फिर कटो वैल्यू है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा एक चीज याद रखना, जो भी अंडूड वाले सम होंगे जिदा आ गया अंडूड वाले तो इधर पुट करो 0 नूं ते ए तुहाडे कोल की बन जानी है, फिर 0/0 फॉर्म बन जानी है, करके देखना ना sin 0 0 1 + 0 1 -1 - 0 अंडूड 1 1 - 1 की बन गया, ऊपर भी 0 ते थल्ले भी 0। हुण मिक्स पाते उन्हें ना तो ऊपर एक्सपोनेंशियल है तो साइन भी आ गया, सॉरी पोलीनोमियल भी आ गई तो साइन भी आ गया। यार तुम सीधा याद रख लो, जो भी अंडूड वाले 0/0 बन जाएंगे तो तुम यदि वैल्यू कितना करनी है रैशनलाइज करके, जिदा रैशनलाइज कर देंगे अंडूड कितना सॉल्व होना है, इदा मल्टीप्लाई डिवाइड करके, मतलब रैशनलाइज कर, ठीक है जी। ये अंडूड वाले याद रखना आ गया। 0/0 फॉर्म कितना खत्म होनी है, अंडूड वाले पहला की करियो जिदा रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज से नहीं गा सीधा ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया, माइनस इधर प्लस प्लस होगा। चलिए अगे हुण इहदे विच तुसीं ध्यान नाल देखना, ए की बन गया a - b a + b, a - b a + b, ए की बन गया a² - b² का फार्मूला, ए की बन गया a - b ते a + b। ए स्क्वायर मैं सीधा लिखने लगा शॉर्टकट कैलकुलेशन, ए अंडूड का स्क्वायर करोगे, अगर कंफ्यूज होगी बार बार रिपीट करके देख लियो, a - b a + b, a² - b²। अच्छा अंडूड का स्क्वायर करोगे 1 + 2x - b², माइनस है ध्यान रखना, ब्रैकेट में पाइयो b², जिले ए का स्क्वायर करोगे अंडूड कटे जाना, तो नीचे कितना आ गया sin x अंडूड 1 + 2x प्लस अंडूड 1 - 2x, लास्ट सम ही अज वीडियो का आ गया। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो अगे मैं इत्थे लिख देना, जिले तुसीं ये सॉल्व करोगे x टेंड्स टू 0 1 - 2x 1 प्लस बाहर माइनस m माइनस माइनस की होना है प्लस, ताई तुहानूं कहते ब्रैकेट पाओ, ऐ ना करियो माइनस करके ब्रैकेट ना पाओ तो गलत होई ना, ये थे माइनस ही ला लेना, गलत होना फिर कटे नहीं। a - b a + b a² - b², तो थले कितना आ गया sin x अंडूड 1 + 2x प्लस अंडूड 1 - 2x, ठीक है। उस नाल उदा ही आए ना 1 + अंडूड 2x 1 - अंडूड 2x, आराम कर देना ना, कटेंगे 1 नाल 1 कटिया गया, आगे बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 4x अपॉन sin x 1 + 2x प्लस अंडूड 1 - 2x। हुण तुसीं इहते लिमिट पुट करो, इहते x नूं 0 पुट करोगे ऊपर भी 0, sin 0 0
जीरो इंटू समथिंग जीरो, फिर जीरो बाई जीरो बन गई, फिर जीरो बाई जीरो बन गई। पर हाँ तुम अगले स्टैप च करो, मैं इतने इको स्टैप च करन लगा, बोर्ड छोटा है। अगले स्टैप च तुम करना है जीरो बाई जीरो ट्रिग्नोमेट्री से कितना खत्म होती है, फिर है फार्मूला है ना, यदि वैल्यू कितनी होती है 1 लगाओ, एंगल से कितना एक्स, इधर भी एक्स चाहिए। तुम अगले स्टैप च की करो, ए 4 वखरा करके एक्स वखरा करके इधर ब्रैकेट से पा लो। ठीक है, मैं दो स्टैप का एक स्टैप करता है, 4 वखरा करके इनू ब्रैकेट से पा लो। ठीक है जी, जिसले लिमिट पुट करोगे ए कितना आ गया 4, लिमिट पुट करती 4, यदि वैल्यू कितनी आ गई 1, थले भी एक्स 0 पुट होएगा, नीचे भी एक्स 0 पुट होएगा, यदि जगह ते की बन गया 1 अंडरूट 1 प्लस 0 प्लस अंडरूट 1 माइनस 0। जिले लिमिट पुट करनी है सारी जगह एक्स की जगह की पुट कर देना है 0, इतने नहीं 0 पुट करना, ऐ ना करते कि 0 बाय साइन 0 नहीं, यदि जगह ते की बन जाना 1, फार्मूला लग गया, तो बाकी जगह जितने भी एक्स है उत्थे की पुट कर देना है वैल्यू। तो ए की बन गया, ऊपर की बन गया 4, 1 का अंडरूट 1 प्लस 1, ए की बन गया 4/2, तो यदि वैल्यू कितनी आ गई 2। ए कितनी वैल्यू आई है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, ਇਹਦਾ मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स के इक्वल आ गया 2 दे। एन नंबर 1 पा लो। नाउ हूँ दूजी वैल्यू कहती करनी है एफ ऑफ 0, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂਗਾ, मतलब ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ fx ਤੇ f0 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2, एफ ऑफ 0 की कितनी की बनी, वो तुम स्टेटमेंट की बनी है ना, मैं रब करती है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से यदि वैल्यू कितनी 2, स्टेटमेंट देखना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 जिदा पिछली वीडियो से पढ़िया दोनों इक्वल आ गए, वो दोनों इक्वल आ गए, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया फिर एफ एक्स की हो गया कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਲਾਸਟ ਬੋਲਾਂਗਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਆਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਆਣੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੱਢੋ। ਆ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਸਮ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।